નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકામાં બિલીમોરા શહેરમાં કોળી પટેલ સમાજની વાડીમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી શંકરસિંહ વાઘેલાની અધ્યક્ષતામાં પ્રજાશક્તિ મોરચા દ્વારા સમીક્ષા બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। નવસારી જિલ્લાના બિલીમોરા શહેરમાં કોળી પટેલ સમાજની વાડીમાં 11/10/2020ના રોજ નવસારી જિલ્લા પ્રજાશક્તિ મોરચા દ્વારા પાર્ટીના સંસ્થાપક અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી શંકરસિંહ વાઘેલાની અધ્યક્ષતા હેઠળ સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ દ્વારા આવનારી ચૂંટણીમાં તેમની પાર્ટી દ્વારા યોગ્ય અને ચરિત્રવાન ઉમેદવારોની પ્રજાની સાચી સેવા કરવા માટે મેદાનમાં ઉતરવા તેમજ પાર્ટીમાં સેવાભાવી વ્યક્તિઓને પદ પર નિયુક્ત કરવા જેવી કામગીરી બાબતે રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં આવી હતી। તેમજ શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ દ્વારા સમીક્ષા બેઠકમાં 5 સંકલ્પ વિશે ચર્ચા કરી અને જો બાપુની સરકાર સત્તામાં આવે તો આ 5 યોજનાનો અમલમાં આવશે, જેમાં વાર્ષિક 12 લાખ સુધીની આવક ધરાવતા પરિવારના બાળકોને વિનામૂલ્ય શિક્ષણ મળશે, તેમજ વાર્ષિક 12 લાખ સુધી આવક ધરાવતા પરિવારને 12 લાખનું આરોગ્ય વીમા કવચ આપવામાં આવશે, તેમજ ગુજરાતના 100 યુનિટી સુધી ઘર વપરાશનું વીજ બિલ માફ થશે અને ખેડૂતોના પ્રતિ હોર્સ પાવર 400 થી 500 રૂપિયા આપવામાં આવશે। મીટર પ્રથા નાબૂદ કરવામાં આવશે, તેમજ બેરોજગાર યુવાનોને 5 વર્ષ દરમિયાન 10 લાખ રોજગાર ઉપલબ્ધ થશે અથવા બેરોજગારી ભથ્થું આપવામાં આવશે અને ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં અન્ય રાજ્યોમાં કરતાં વધારે દારૂ ગુજરાતમાં પીવાતું હોય છે અને હપ્તા રાજની બોલાબાલી વધી રહી છે, જેથી આવી કૃત્રિમ દારૂબંધી જે ફક્ત નામની જ કહેવાય છે એને હટાવીને ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરી સરકારી આવકમાં વધારો કરવામાં આવશે। આ રીતે શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુએ શિક્ષણ, આરોગ્ય, વીજ બિલ, બેરોજગારી અને દારૂબંધી જેવા મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી। તેમણે આ 5 મુદ્દાની પંચામૃત યોજના વિશે માહિતી આપી હતી। આ 5 મુદ્દાઓને કારણે લોકો શંકરસિંહ વાઘેલાને સકારાત્મક પ્રતિક્રિયા પણ આપવામાં આવી રહી છે, જેને કારણે આવનારા દિવસોમાં ચૂંટણીના પરિણામોમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે તેવું બાપુએ જણાવ્યું હતું। બિલીમોરા શહેરમાં યોજાયેલી સમીક્ષા બેઠકમાં પ્રજાશક્તિ મોરચા જિલ્લા નવસારી પ્રમુખ વિશાલભાઈ સૂર્યવંશી, પ્રવક્તા ઉપેશભાઈ पटेल તેમજ प्रजाशक्ति मोर्चा जिला नवसारी होद्देदारों ने कार्यकरों मोटी संख्या में हाजिर रहा था। देखिए, हर समस्या की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। कई समस्या है क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट इन गुजरात सिंस 25 years बीजेपी इज देयर, इन लास्ट 6 years बीजेपी इज देयर इन दिल्ली। सबकी जो दवाई है, सबका जवाब है कि आज की गवर्नमेंट लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उस गवर्नमेंट को चेंज करो। और चेंज करने का मौका 5 साल में एक बार आता है पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में। यहाँ बाई इलेक्शन 8 असेंबली गुजरात में बाई इलेक्शन है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एमएलएस को खरीदा। मैंने सुना है कि करोड़ों रुपए में खरीदा। जिसने अपनी जात बिकी है वो तो जिम्मेदार है, लेकिन खरीदने वाला भी जिम्मेदार है। बीजेपी को मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत थी कांग्रेस के धारासभ्यों को तोड़ने की। ये तोड़कर जो गुजरात में पॉलिटिकल माहौल ख़राब किया है, उसका जवाब मैं समझता हूँ कि बाई इलेक्शन में वोटर्स देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और जो गरीब भाई बहन हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जॉब नहीं है और जो सैलरी भी नहीं मिल रही उनके देखिए, गवर्नमेंट हेल्पलेस, गवर्नमेंट को कोई दिशा नहीं है। एंड आई एम सॉरी, 6 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई इकोनॉमी, फाइनेंस, कॉमर्स जानने वाला मिनिस्टर भी नहीं है जिसको फाइनेंस के बारे में कोई पता हो। इसलिए देश की इकोनॉमी ख़त्म हो गई। आरबीआई बिना दिशा चल रही है और गवर्नमेंट जो जिस हिसाब से नोटबंदी किया, जीएसटी किया, तो इकोनॉमिकली इंडिया ख़त्म है। और लॉकडाउन जो किया बिना समझ से, सिर्फ वीम के हिसाब से, इसमें न सिर्फ महामारी कोरोना बढ़ी, लेकिन 1929 में वॉल स्ट्रीट में अमेरिका की जो मंदी आई थी, इससे भी ख़राब रिसेशन, बहुत ख़राब, बियॉन्ड इमेजिनेशन। यानी कि लोगों को खाना तक नहीं मिलेगा, चोरी बढ़ेगी, मर्डर बढ़ेंगे, सुसाइड बढ़ेंगे और लेने वाले कंज्यूमर नहीं होगा, जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ये जो विशेष साइकिल है ना, एक गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को ख़त्म कर देगा। और जो आप ड्रिंक की बात आ रही है, जो गुजरात में आप लाने वाले हैं, उसकी क्या रीज़न? देखिए, हम जो इस हिसाब से आज जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम में गुजरात तो जो नंबर 1, नंबर 2 की बात थी वो ख़त्म है। महाराष्ट्र में नशाबंदी नहीं है, गुजरात में है, फिर भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। मुंबई में हमारा गुजरात का समझ लीजिए, वहाँ की हमारी बहनें की कोई मजाक मश्करे नहीं करता है। तो आर्टिफिशियल करप्ट पॉलिसी है, वो पॉलिसी साइंटिफिक होनी चाहिए। इस पॉलिसी के हिसाब से ड्रग्स में लोग ज़्यादा बढ़ गए। इस पॉलिसी के हिसाब से बिलो 30 यूथ लोग जो है वो केमिकल शराब पीकर मर गए।
लाखों विडो विथ 2 चिल्ड्रन गुजरात में, इन लैक्स ऑफ, इतनी कोई जिला ऐसा बाकी नहीं होगा जिसमें बिलो 30 की विडो ना हो। ये सब ड्यू टू दिस डर्टी पॉलिसी, आर्टिफिशियल पॉलिसी, करप्ट पॉलिसी, इस हिसाब से हुआ है। उस पॉलिसी को प्रो पीपल साइंटिफिक के हिसाब से उसको बनाओ जिससे कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो। और जो बच्चों की स्कूल की समस्या है वो कब तक सॉल्व? देखिए ये तो सॉल्व होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो गवर्नमेंट है ही नहीं, एजुकेशन तो कई सालों से ख़त्म है गुजरात में। और मैं समझता हूँ ये जो गुजरात में आज की गवर्नमेंट है इसमें किसी को चिंता ही नहीं है कि 25% क्या है, 50% क्या है। हमने हमारी पार्टी की ओर से कहा है कि हम 100% आपको फ्रीशिप अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट जिसकी सालाना 12 लाख रुपये आवक है, पर मंथ 1 लाख रुपीज़, इन सब की हेल्थ ट्रीटमेंट फ्री, एजुकेशन फ्री, वाटर टैक्स फ्री, इलेक्ट्रिसिटी पावर अप टू 100 यूनिट फ्री। किसानों को पावर हॉर्स पावर में जो होता है वो 400 रुपीज़ प्रति हॉर्स पावर नॉर्थ गुजरात सौराष्ट्र में, और 500 रुपये प्रति हॉर्स पावर साउथ गुजरात में जो पानी अप है। और इनका जो डेप्ट है किसानों का वो माफ़ करना, इनको जो चाहिए फर्टिलाइज़र और सीड्स वो भी अच्छे कम भाव से दिया जाए। और यहाँ जो प्रॉब्लम आजकल है वो मेट्रो का जो एक्वायर होती है ज़मीन उसका, और बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेस हाईवे, इतने किसानों की ज़मीन जाती है जो रिप्लेस नहीं हो सकती है। ज़मीन है, और वो लोग कहते हैं कि हमको बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमको एक्सप्रेस वे नहीं चाहिए। आपका एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर करो ना, अभी जो रोड है ना इसके ऊपर करो, 3 मंजिली ले जाओ। अगर आपको मेट्रो लंदन में 3-4 मंजिली नीचे जाती है तो बुलेट ट्रेन ऊपर ले जाओ ना, मेट्रो के रोड के ऊपर बुलेट ट्रेन करो, नया कोई एक्वायर ज़मीन करते हो। ये प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूँ कि किसान भी ये हिसाब किताब करेंगे इस बार इलेक्शन में। और जो बैंक का जो लोन दिया गया है, मोदी बोल रहे हैं कि देखो किसी को पता ही नहीं है, इनको दिया यदि लिप सिंपैथी बैंक होती है, बहुत परेशान करे ये लोग, बिल्कुल जानबूझकर लोगों को भगाए। ये बीजेपी की मेहरबानी से करोड़ों रुपए देश के ख़त्म हो गए। पब्लिक मनी है ये, बीजेपी की मालिकी के पैसे नहीं है। लोन नहीं देने में, अप्लाई करने में नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अब तो लोन जो है चल रहे हैं उनमें परेशान, कुछ नहीं होगा। बैंक का आपको कुछ नहीं होगा। RBI ख़त्म है, एक आदमी की वीम से दुनिया चलती है। मोदी भाग गया, मालिया भाग गया, कई लोग भाग गए, और जो बचा था वो जो पैसे वसूली करने थे वो भट्ठा काटा में डालकर परमानेंट ख़त्म कर दिया। लेकिन पब्लिक के पैसे, ये लोग कौन होते हैं जो भगोड़ू लोग हैं इनको देने के लिए, या जो बैंक मांगती है वो भी मांगना ही नहीं है, बस मामला पूरा। ये जो मामला है ना वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी ख़त्म करने वाले यही लोग हैं, मंदी के जनक यही लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज़ाद न्यूज़, नवसारी।